Assalamu alaikum students. Hoping you are fine. Today our topic is saving function. As you know, we are studying about the determinants of national income. There are three basic determinants of national income: consumption, saving and investment. We have studied about the consumption function. Today we are going to study saving function. Under this topic, we will study components and concepts, schedule and the graph of the saving function. And in the end, we will also discuss about those factors which determines the consumption level and the saving level of a nation. So here is the saving function. Saving function shows the relationship between the two variables, saving and income. Here S represents the saving and Y represents the income. S represents saving, Y represents the income. There is a positive or the direct relationship between the two variables. When national income of a nation tends to increase, the saving power, the power to save, also increases. In the same way, the decreased level of national income causes the national saving to decrease. So there is a positive or the direct relationship between the both variables. The reason behind is because when the income of a nation increased, automatically he is in the position to save more. जैसे जैसे किसी मुल्क की जो है वो आमदनी बढ़ती चली जाएगी, वो इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो जो है वो पहले से ज्यादा मिकदार में जो है वो बचतें कर सके. अब इन चूंकि दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इनमें जो तब्दीली की सिमत है, डायरेक्शन ऑफ चेंज है, वो सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है. सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम. सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम. ये दोनों वेरिएबल्स में पाए जाने वाला एक फंक्शनल रिलेशनशिप है. While here there is a standard equation of both variables. Saving is equal to minus S naught plus small s5. Here in this equation there are two variables, S saving, Y for income, and minus S naught. Here in the saving equation consists of two components, minus S naught plus S5. Here S naught shows the minus S naught. Here minus S naught shows the negative savings. Although there are many economic variables which have no economic sense if they are negative, but the saving in a negative position, it has a sense. Negative saving means that the consumer or a nation is dissaving. Instead of saving, it is dissaving. And S5 shows the induced savings. So these are the two components. Here these two components have been discussed in detail. The first component, autonomous saving, खुद इख्तियार बचते या autonomous saving, ये हमारा जो है वो पहला कंपोनेंट है. Here saving is equal to minus S naught. इसके जो है वो इंटरप्रिटेशन ये की जा सकती है कि अगर हमारी इनकम जो है वो जीरो हो जाए, अगर इनकम लेवल किसी भी नेशन या पर्सन का जो है वो जीरो हो जाए, तो सेविंग जो है वो माइनस एस नॉट के जो है वो बराबर होती है. जैसे देखिए इस इक्वेशन में अगर इनकम लेवल जीरो हो जाए तो ये जो है वो कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और सेविंग जो है वो माइनस एस नॉट के बराबर होगी. गोया कि जब एक फर्द या कौम की आमदनी जीरो हो जाती है तो उसकी कंजम्पशन जीरो नहीं होती. जैसे कि हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा था कि जब इनकम जीरो हो जाती है तो वहां कंजम्पशन जीरो नहीं होती, बल्कि C इज इक्वल टू C नॉट. कंजम्पशन जो है वो C नॉट के बराबर रहती है. तो वो एक्सपेंडिचर्स जो है वो एक नेशन या कौम या एक फर्द जो है वो कैसे करता है, वो दर हकीकत में जो है वो इखराजात करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर्स करने के लिए डिस सेविंग कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ जो है ये नुमाया हो रहा है.
एक फर्द जो है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर चूंकि उसको अखराजात करने पड़ते हैं, इसलिए वो बचत करने के बजाय अपनी पुरानी बचतों को इस्तेमाल कर रहा है या कि वो कर्जा ले रहा है। एंड द सेकंड कंपोनेंट इज इंड्यूस्ड सेविंग। इंड्यूस्ड सेविंग ऐसी सेविंग जो इनकम से इंड्यूसमेंट लेती है, इंसेंटिव लेती हैं। गोया इनको तरकीब याफ्ता बचतें कहते हैं। ये आमदनी से तरकीब पाती हैं। आमदनी के ज्यादा हो जाने पर ज्यादा और आमदनी के कम हो जाने पर कम हो जाती हैं। ये कंपोनेंट जो है वो SY कहलाता है। Here S shows how much will saving be increased due to the change in the income। यानी आमदनी के बढ़ने से, आमदनी में तब्दीली से जो है वो सेविंग में किस कदर जो है वो तब्दीली होगी, इसका निसार जो है वो S पर है। ये S जो है वो MPS मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव को भी जो है वो जाहिर कर रहा है। गोया यहाँ सेविंग के दो कंपोनेंट्स हैं, खुद इख्तियार बचते। आमदनी अगर जीरो हो जाती है तो हमारी सेविंग जो है वो डिस सेविंग में तब्दील हो जाएगी, -S0 के बराबर होगी। जबकि तरकीब याफ्ता बचतें ऐसी बचते हैं जो कि आमदनी से तरकीब पाती हैं। Here we will discuss the two main concepts of saving functions. These are average propensity to save and marginal propensity to save। औस में लाने बचत और मुख्तती में लाने बचत। Average propensity to save। Average propensity to save is ratio of saving to income। औस में लाने बचत से मुराद है बचत और आमदनी में तनासुब। So the formula of the average propensity to save is equal to S/Y। औस में लाने बचत बराबर है बचत बटा आमदनी। गोया हम किसी मुल्क की जो बचतें हैं अगर उसको उसकी आमदनी पर डिवाइड कर दें तो हमें औस में लाने बचत हासिल होता है। ये औस में लाने बचत APS ये जाहिर करता है कि एक कौम जो है वो अपनी आमदनी का कितना हिस्सा जो है वो बचत की नजर कर देती है। जैसे कि यहाँ हमने एक ओकेशन जो है वो ली है, सेविंग इज इक्वल टू -40 प्लस 0.45। आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन और जो हमने वहां पिछले लेक्चर में कंजप्शन की इक्वेशन यूज की थी, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ वहां C0 प्लस 40 के बराबर था और यहाँ -S0 जो है वो -40 के बराबर है, जिसका मतलब है कि अगर इनकम लेवल 0 हो जाए तो हमारी कंजम्पशन 40 है। तो ये 40 जो है ये कहाँ से हासिल किए जा रहे हैं, ये यहाँ वो 40 नजर आ रही है कि सेविंग जो है वो डिस सेव की जा रही है, यानी कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है या कि लोन लिया जा रहा है। और वहां जो है वो हमारा जो इनकम के साथ जो हमारा पैरामीटर अटैच था जो कि MPC कहलाता है वो है 0.6 और यहाँ है 0.4। अब देख रहे हैं 0.6 और 0.4 को हम एडअप कर लें तो ये रिजल्ट है 1। यानी अगर एक नेशन 60% हिस्सा कंज्यूम कर रही है अपनी चेंज्ड इनकम का तो 40% जो है वो सेव कर रही है। इस तरह ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे से आसानी के साथ निकाली भी जा सकती हैं। ये है हमारी सेविंग इक्वेशन। सेविंग इज इक्वल टू -40 प्लस 0.45। इस इक्वेशन को हम अगले अपने पूरे एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे। Here EPS इज इक्वल टू S/Y। आप इस इक्वेशन को जो है वो y पर डिवाइड करेंगे, आपका रिजल्ट है 40 डिवाइडेड बाय y प्लस 0.4। So if we assume that the income level is equal to 300, then what will be the level of the saving? By putting this income level of 300 in the saving equation, here we put 300 and we solve this equation for the saving and we calculate saving. Saving is equal to 80 and now dividing saving which is 80 by the income level which is 300, we obtain APS is equal to 0.27. What is the meaning of 0.27 level of EPS? It shows that a nation saves 27% of his income। यानी एक कौम जो है वो अपनी आमदनी का 27% हिस्सा जो है वो सेव कर लेती है। आपने देखा कि पिछले लेक्चर में कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करते वक्त हमने देखा था APC कितना था, 0.73 था। ये चूंकि दोनों इक्वेशंस इंटर रिलेटेड हैं, चुनांचे इससे ये साबित हुआ कि अगर एक नेशन अपनी आमदनी का 73% हिस्सा कंज्यूम करती है तो 27% हिस्सा सेव कर लेती है। Now the next concept is marginal propensity to save।
Marginal propensity to save is the ratio of change in saving to change in income. मुख्ततिम मिलाने बचत से मुराद बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली का तनासब है। MPS का फार्मूला है MPS is equal to delta S over delta Y. Here delta shows change, तब्दीली। चाहे मुख्ततिम मिलाने बचत का फार्मूला हुआ बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। MPS is the slope and the derivative of the saving function. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी भी, जैसे हमने डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर किया मैथ में, वहां भी हम जब किसी वैल्यू की, किसी भी जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट की मार्जिनल वैल्यू मालूम करना चाहते थे तो वहां हम उसकी टोटल वैल्यू का डेरिवेटिव लेते थे। जैसे कि टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जो सेविंग फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लें तो वो उसकी मार्जिनल वैल्यू यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर होगा। सो we can obtain the marginal propensity to save by taking the derivative of the saving function with respect to income. Here we take an example. If the income level is equal to 300 at the first stage and saving level is equal to 80, then what will be the saving level? If the income level is equal to 300 and the saving level, we will put this income level which is 300 in the saving equation and we will solve it for the S for saving, and the saving level is equal to 80. And in the next stage, if the income level has increased from 300 to 400, and by putting this income level of 400 again in the saving equation, we will get the saving which is equal to 120. Now here we will calculate the change. Delta is change in saving, which is 120 minus 80. It will be equal to 40. And what is the change in the income level? It is equal to 100. 400 divided by 400 minus 300. Now by dividing the delta S over delta Y, we will get the MPS, marginal propensity to save, which is equal to 0.4. What is interpretation of this 0.4 MPS? It shows that our nation will save 40% of his changed income. यानी एक नेशन जो है, एक कौम जो है, वो अपनी तब्दील शुदा आमदनी का 40% हिस्सा जो है वो सेव कर लेती है। जैसे उसकी आमदनी में अगर 100 की तब्दीली आई है तो 40 रुपीज सेव कर लेगी। अगर उसकी आमदनी जो है वो 1 लाख जो है उसमें इजाफा हुआ है तो उसका वो 40,000 जो है रुपीज जो है वो सेव कर लेगी। एमपीएस को हम डायरेक्टली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग दी डेरिवेटिव ऑफ द सेविंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम। हमने यहाँ सेविंग फंक्शन का इनकम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है। ये है हमारी सेविंग इक्वेशन, इसका हम इनकम के रिस्पेक्ट से जो है वो डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये हमने डेरिवेटिव से बहुत सॉल्व किए हैं। हमारा डेरिवेटिव ये एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0 आ जाएगा और यहाँ जो है डेरिवेटिव होगा 0.4। गोया यहाँ भी हमारे पास वही वैल्यू आई है जो कि फार्मूले के जरिए आई थी। Now here we can prove there is a mathematical proof. मुख्ततिम मिलाने बचत मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव का हमने फार्मूला जो है वो जो हमने यहाँ अज्यूम किया ये था डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। हम इस फार्मूले की यहाँ जो है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो करेंगे। दी फर्स्ट इक्वेशन इज द सेविंग इक्वेशन, एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। If the income level change, then automatically by the theory, according to theoretically, if there is a change in the income, then the saving will be changed because saving depends on income. So income change, automatically the saving level will be changed. So if we introduce a change on the left side, then there will be a change in the right side. So if there is a change
in the delta y, then automatically there is a change in the delta s. So we have introduced a change on the both side. And by simplifying this equation by multiplying the s with y plus delta y, we obtained s plus delta s is equal to minus s naught plus sy plus s delta y. This is our equation number 2. And now by subtracting equation number 1 from equation number 2, equation number 1 from equation number 2, we obtained delta s. There are three common members, s, minus s naught and sy, and these three members will be cancelled out, and what we obtain is equal to delta s is equal to s delta y. And by dividing delta s or delta y, we obtained MPS. So MPS here mathematically proved that the MPS is equal to delta s over delta y, change in saving divided by change in income. Here is another concept that if we add APS and APC, then the result will be 1. Here 1 represents the whole income, और इसी पूरी इनकम के हम जो है वो हमेशा दो हिस्से करते हैं, कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं, कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं. इससे ये भी साबित होता है कि if we know APS, we can easily calculate the APC by subtracting APS from 1. यदि अगर हमें जो है वो APS मालूम है और हमें APC कैलकुलेट करना है, तो हम 1 में से APS माइनस करके APC कैलकुलेट कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह MPS और MPC ये भी दोनों जो हैं वो एक को एडअप करें तो हमारा रिजल्ट 1 है. गोया अगर हमें MPC अगर हमें मालूम है और हम MPS कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 में से MPS जो है वो माइनस करके MPC कैलकुलेट किया जा सकता है. Here is a schedule for showing the relationship between the saving and the income. In the first column, there are different income levels, and by putting these income levels in the saving equation, we have obtained the different saving levels. At the zero level of national income, our saving is minus, क्योंकि income level जो है वो इतना कम है कि एक नेशन अपनी सारी की सारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगी. जाहिर है कि उसको जो है वो डिसेविंग करनी पड़ेगी. हर फर्द और हर कौम जो है वो सरवाइव करना चाहता है, वो अपनी बका के लिए लाजमी खर्च करेंगे. इसलिए इनकम लेवल पर भी हमारी कंजम्पशन जो है वो जीरो नहीं होती. चुनाचे कंज्यूम करने के लिए जो है वो एक नेशन जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो डिसेविंग करती है, पुरानी बचतों को इस्तेमाल करती है या कि लोन लेती है. इसके बाद हम देखते हैं कि जब इनकम लेवल बढ़कर 0 से बढ़कर 50 हो जाता है, तो तब भी उसकी सेविंग जो है वो नेगेटिव ही है. जिसका मतलब ये है कि अभी इनकम लेवल इतना कम है कि उसकी सारी की सारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे. अलबत्ता 100 जो है वो यूनिक लेवल ऑफ नेशनल इनकम है जिस पर हमारी सेविंग 0 है. जिसका मतलब है कि 100 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर हमारी सेविंग और हमारी कंजम्पशन और हमारी इनकम जो है वो बराबर है. यानी एक नेशन 100 ही जो है वो अर्न कर रही है और 100 ही जो है वो कंज्यूम कर रही है. चूंकि कंजम्पशन और इनकम लेवल जो है वो बराबर है, इसलिए हमारा जो सेविंग लेवल है वो 0 है. इसके बाद जैसे जैसे आमदनी बढ़ती चली जा रही है, हम देख रहे हैं कि सेविंग लेवल भी मुसलसल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. बहरहाल इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग मुसलसल जो है वो बढ़ रही है. हम कह सकते हैं कि सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, और ये जो है ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड हैं. हियर वी हैव कैलकुलेटेड इन द थर्ड कॉलम APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, बाय डिवाइडिंग द सेविंग बाय इनकम लेवल. फर्स्ट वन हम -20 को 50 पर डिवाइड करेंगे, रिजल्ट है -0.4. और इसी तरह जो है हम सारे के सारे सेविंग लेवल्स को इनकम लेवल्स पर डिवाइड करके हमने APS जो है वो कैलकुलेट किया है. व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द APS? आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. APS जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है. जिसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो APS जो है वो मुसलसल उस नेशन की जो सेविंग पावर है वो मुसलसल ज्यादा हो रही है.
आपने देखा था कि पिछले हमारे लेक्चर में कंजम्पशन फंक्शन में कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ एपीएस जो है वो एपीसी मुसलसल कम हो रहा था। तो जाहिर है अगर वो कम हो रहा है, कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सेविंग की प्रोपेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है एमपीएस, उसके लिए हम डेल्टा एस और डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे। हर जो है वो न्यू नेशनल इनकम के लेवल में से जो है वो ओल्ड इनकम लेवल जो है वो सब्ट्रैक्ट करके हमने चेंज इन इनकम कैलकुलेट की है, और इसी तरह हमने चेंज इन सेविंग जो है वो कैलकुलेट की है, और सेविंग को इनकम पर डिवाइड करके हमने एमपीएस जो है वो कैलकुलेट किया है। अगरचे ये यहाँ जो है वो मुसलसल जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। Now here is a graph of showing the consumption function, showing the relationship between the both variables. Saving is the function of income. We can see here that the saving function is a positively sloped. सेविंग फंक्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और हाँ यहाँ हम सेविंग फंक्शन को सेविंग कर्व जो है इस कर्व को 3 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। लुक एट द पॉइंट ए, look at the point A. At point A, the saving level is equal to 0. और अगर हम इससे जो है वो लेफ्ट साइड पर देखें तो हमारा जो सेविंग का खत है वो 0 की लाइन से भी जो है वो नीचे मौजूद है। गोया कि पॉइंट ए से जो कम इनकम लेवल है वो इस कदर कम है कि एक नेशन जो है या एक फर्द जो है वो अपनी सारी की सारी ज़रूरियात जो है वो अपनी इनकम से पूरी नहीं कर पा रहा, उसको जो है कुछ डिस सेविंग करनी पड़ रही है, पुरानी बचतें इस्तेमाल करनी पड़ रही है, कर्जा लेना पड़ रहा है। इसीलिए जो है पॉइंट ए से जो है वो अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो सेविंग का खत जो है वो 0 की लाइन से नीचे मौजूद है। अलबत्ता ए जो है वो एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जिस पर नेशन की जो सेविंग और कंजम्पशन लेवल जो है वो बराबर है, चुनांचे यहाँ हमारी सेविंग 0 है। चुनांचे पॉइंट ए के बाद यानी 100 लेवल ऑफ नेशनल इनकम के बाद जैसे जैसे हमारी आमदनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, हमारा सेविंग लेवल जो है वो पहले की निस्बत इंक्रीज हो रहा है। चुनांचे हमारा सेविंग का ये जो खत है ये 0 की लाइन से जो है वो ऊपर मौजूद है। ये है हमारा सेविंग कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और अगर हम इस पॉइंट पर एपीसी और एपीएस कैलकुलेट करना चाहें, एपीएस और एमपीएस, एपीएस जैसे कि हमें पता है इसका फार्मूला है S/5। तो अगर हम पॉइंट बी पर एपीएस कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ हमारा सेविंग लेवल क्या है, यहाँ पर हमारे सेविंग लेवल ये है, क्योंकि हम वाई एक्सिस पर जो है वो सेविंग को मेजर करें और एक्स एक्सिस पर इनकम को मेजर करें, तो हमारा जो सेविंग लेवल है वो कितना है, वो बीएम है। हमारा जो सेविंग लेवल है वो बीएम है। अगर हम इसको इधर सामने ले चलें तो वो कितना है, वो ओजी के बराबर है, यानी आप उसको बीएम भी कह सकते हैं या ओसी भी कह सकते हैं। हम इस ओसी लेवल को इनकम लेवल पर डिवाइड करेंगे। इनकम हमारी कितनी है, इनकम है हमारी 150, जो कि अगर हम फिगर की जुबान में, एरिया की जुबान में देखें तो वो बराबर है ओएम के। चुनांचे हम ओसी जो कि हमारा सेविंग है, ओसी जो हमारी सेविंग है, इसको हम इनकम पर ओएम पर जो है वो डिवाइड करेंगे। ओएम जो ओसी को अगर हम ओएम पर डिवाइड करें, ओसी किसके बराबर है, ओसी जो है वो 20 के बराबर है, और जो ओएम है, ओएम जो है वो 150 के बराबर है। चुनांचे हमारा रिजल्ट होगा 0.14। यहाँ इस पॉइंट बी पर एपीएस 0.14 है। गोया कि एक नेशन जो है वो अपनी इनकम का 14% जो है वो सेव कर रही है। दूसरा हम पॉइंट एमपीएस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीएस चूंकि चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हमें यकीनन 2 पॉइंट्स चाहिए ताकि उनके दरमियान हम तब्दीली का अमल देख सकें। चुनांचे ए बी के दरमियान जो है इसके झुकाव को मालूम करने के लिए हमें ज़ाहिर एक ट्राइंगल चाहिए। चुनांचे ए बी एम, इसकी हम जो है वो यहाँ स्लोप देखेंगे। स्लोप का फार्मूला आपको पता ही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर जो कि बी एम है इसको हमें ए एम पर जो है वो डिवाइड करना है। जहाँ से बी एम को हमने एम ए पर डिवाइड किया। बी एम जो है वो है 20 और जो है वो ए एम क्या है, 150 में से 100 निकालें तो ये है 50। बी एम डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 20 है, और ये जो ए एम है या एम है ये डेल्टा वाई को यानी 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चुनांचे हम इसको बी एम जो कि 20 है उसको जो है वो डेल्टा एस
पर डेल्टा वाई पर डिवाइड करेंगे जो कि 50 है, हमारा रिजल्ट है 0.4। इसका मतलब है एक नेशन अपनी चेंज्ड इनकम का, तब्दील शुदा आमदनी का 40% हिस्सा जो है वो सेव करती है। Now here we will discuss some factors which affects the consumption and the saving function. We have divided these factors into two parts: subjective factors अंदरूनी अवामिल and the objective factors बैरूनी अवामिल. Now first of all we will discuss अंदरूनी अवामिल और subjective factors. The first factor is the मुहर्रिके गैर मुतवक्का ज़रूरियात, motives of foresight. अगर हम मोटिव्स ऑफ फोरसाइट को देखें तो चूंकि हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अनसीन है, इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो मुस्तकबिल में वक़ूअ पज़ीर होने वाली बहुत सी जो गैर मुतवक्का ज़रूरियात हैं उनके लिए भी जो है वो पहले से बचत करते हैं। जैसे कि उन्हें पता है कि कुछ भी जो है वो अनसीन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज, बेरोजगारी, कोई ऐसा क्राइसिस जो उसके लिए जो है जितने अगर लोग एहतियात पसंद हैं तो वो अपने पास जो है वो रकम को कुछ मिकदार में सेव करके रखते हैं। ऐसी सूरत हाल में उस नेशन का सेविंग लेवल इंक्रीज कर जाएगा और कंजम्पशन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। द फर्स्ट फैक्टर इज मोटिव ऑफ फोरसाइट, यानी मुहर्रिके दूरअंदेशी। अगर लोग दूरअंदेश हों तो ऐसी सूरत हाल में वहां सेविंग लेवल इंक्रीज कर जाएगा और कंजम्पशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट मोटिव है मुहर्रिके कारोबार या मोटिव्स ऑफ एंटरप्राइज। ऐसी सोसाइटीज जहां लोग चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करें तो वहां जो है वो सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है कंजम्पशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इन द सेम वे मोटिव ऑफ कैलकुलेशन या मुहर्रिके तखमीना, ऐसे लोग जहां जो है ऐसी सोसाइटीज जहां लोग जो है वो खूब सेविंग करते हैं ताकि वो उसको लोगों को कर्ज देकर उसकी मदद से जो है वो इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकें, वहां भी सेविंग लेवल इंक्रीज कर जाता है और कंजम्पशन लेवल जो है वो कम हो जाता है। इस तरह जो है फिर मुहर्रिके जो है वो बेहतरी भी है। मुहर्रिके बेहतरी मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसी सोसाइटीज जहां लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना चाहते हो, वो ज्यादा बेहतर जो है वो लवाजमात जिंदगी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो पहले स्टेप पर जो है यकीनन वहां सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा और कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। लेकिन दूसरे स्टेप पे यकीनन कंजम्पशन लेवल इंक्रीज करेगा और सेविंग लेवल जो है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगा। मोटिव ऑफ प्राइड या मुहर्रिके फखर, अगर जो है वो लोग जो हैं वो खूब अपनी जो है वो जायदाद वगैरह बनाने के हक में हो ताकि उनके वर्सा जो है वो उन पर फख्र करें, तो ऐसी सूरत हाल में भी सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मुहर्रिके कंजूसी, ऐसी सोसाइटीज जहां लोग जो हैं वो कंजूसी की तरफ माइल हों तो वहां भी कंजम्पशन के बजाय सेविंग लेवल इंक्रीज करेगा। इन द सेम वे मोटिव ऑफ जनरोसिटी है मुहर्रिके फयासी, इसमें भी हम देखते हैं कि अगर लोग जो है वो बहुत ज्यादा फयाज हों, बहुत ज्यादा शाखरच हों, बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हों, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो अपने बहुत ज्यादा जो है वो कंज्यूम करते हैं, नतीजतन कंजम्पशन लेवल इंक्रीज करेगा, ऑटोमेटिकली उनके पास कम मिकदार में रकम बचेगी जिसको सेव किया जा सके। इस तरह जो है मोटिव ऑफ रिजॉइसिंग है, अगर नेशन जो है वो खूब जो है इस चीज की, इस पॉलिसी के हक में हो कि खूब खाना पीना चाहिए, खूब ऐश करना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये जो रिजॉइसिंग का फैक्ट है ये कंजम्पशन लेवल को इंक्रीज कर देगा और सेविंग लेवल को जो है वो कम कर देगा। और अगर लोग मुहर्रिके दिखावा ऑस्टेंटेशन के अंडर हो, यानी कि बैंड वैगन इफेक्ट के अंडर हो, असरे नुमाइश के अंडर हो और उसके तहत जो है उनके अंदर दिखावा बहुत पाया जाता हो, नमूद नुमाइश के कायल हो और कुछ यकीनन अपने नमूद नुमाइश के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में खर्च करती हूँ, तो वहाँ कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा और सेविंग लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जी, ये तो थे कुछ अंदरूनी अवामिल। अब हम देखते हैं बैरूनी अवामिल या ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले शामिल है शरह सूद। शरह सूद जो है वो सेविंग लेवल को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर हाई होगी तो उसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर ये तरकीब, ये इंसेंटिव मौजूद होगा कि वो ज्यादा मिकदार में सेविंग करें और जो है वो कर्जा देकर जो बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट है उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। चुनांचे शरह सूद का ज्यादा हो जाना सेविंग लेवल को इंक्रीज कर देता है
कम होती हुई जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग लेवल को डिक्रीज कर देती है। इन द सेम वे कीमतों की सतह या कीमतों के बारे में तवक्कात, प्राइस लेवल एंड प्राइस एक्सपेक्टेशंस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द सेविंग फंक्शन एंड द कंजम्पशन फंक्शन। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है, अगर इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, कीमतों की सतह में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो है लोगों को अपना वही एक मखसूस स्पेसिफिक सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कायम करने के लिए उतनी ही कमोडिटीज जो है वो खरीदने के लिए पहले से ज्यादा मिकदार में जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। कंजम्पशन लेवल बढ़ जाएगा, यानी इनकम का ज्यादा हिस्सा कंजम्पशन की नजर होगा। और अगर प्राइसेस कम हो रही हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो इनकम का कम हिस्सा कंजम्पशन की नजर होगा और ज्यादा हिस्सा सेव कर लिया जाएगा। इस तरह प्राइस एक्सपेक्टेशंस बहुत मैटर करती हैं। हो सकता है कि अभी प्राइसेस में इतना इजाफा ना हो रहा हो, लेकिन उम्मीद हो हालात उस नहज पे ठहर चुके हों कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो प्राइसेस बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करेंगी। चुनांचे ये एक्सपेक्टेशंस भी जो हैं वो सेविंग और कंजम्पशन लेवल को अफेक्ट करती हैं। अगर ये उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा तो लोग जो हैं वो कंजम्पशन लेवल को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो आने वाले जो प्राइसेस में इजाफा है उसके नुकसान से बचना चाहते हैं। चुनांचे अगर प्राइसेस जो है वो कम हो रही हों और या ये उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कम हो जाएंगी तो कंजम्पशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग आने वाले दिनों में जो प्राइसेस में होने वाला कट है उससे फायदा उठाना चाहते हैं। चुनांचे वो आज जो है वो कंजम्पशन कम कर देंगे और सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह कीमतों की तकसीम दौलत में तब्दीलियां, चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि अगर मईशत में जो है आमदनी की तकसीम जो है वो मुनसिफाना हो, बिल्कुल जो है वो एक मुनसिफाना किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पाई जाती हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो है कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा जबकि जो सेविंग लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो मुनसिफाना ना हो, वो अनजस्ट हो, तो ऐसे और इनकम का ज्यादा हिस्सा जो है वो अमीरों के पास हो और इनकम का नेशनल इनकम का कम हिस्सा जो है वो गरीबों के पास हो, तो ऐसी सूरत हाल में सेविंग लेवल इंक्रीज कर जाएगा और कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। उसके पीछे ये वजह यह है क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि अमीरों का काम बचत करना है और गरीबों का काम सर्व करना है। चुनांचे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम गरीबों के हक में होगी, यानी ज्यादा मुनसिफाना होगी, ज्यादा हिस्सा गरीबों के पास होगा, तो जाहिर है वो उसको खर्च करेंगे, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अमीरों के, रिच पीपल के हक में होगी, ज्यादा हिस्सा रिच पीपल के पास होगा, तो जाहिर है उनका काम तो सेविंग करना है, तो सेविंग लेवल इंक्रीज करेगा और कंजम्पशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह कंज्यूमर एसेट्स सार्फी असासे हैं। कंज्यूमर एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स मालियाती असासे और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि गैर मालियाती असासे। मालियाती असासे जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, ये सब के सब। जबकि अगर हम नॉन फाइनेंशियल एसेट्स देखें गैर मालियाती असासे, तो इससे मुराद है मकान, जायदादें, प्रॉपर्टीज, फिर उसके अलावा गाड़ियां, घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप्स, ये सब के सब जो हैं वो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अगर नेशन में जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ इन्वेस्ट करने का रुझान ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली नेशन ज्यादा सेविंग करेगी, तो वहां जो सेविंग लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। जबकि अगर गैर मालियाती असासों की तरफ जो है वो ट्रेंड जो है वो ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो है वहां कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि न सिर्फ इन असासों की परचेज पर बल्कि इनकी मेंटेनेंस पर भी जो है वो बहुत ज्यादा सर्फी अखराजात करने पड़ते हैं। फिर लास्ट वन है सोशल एंड दी स्ट्रक्चरल चेंजेस, समाजी और साख्तमानी तब्दीलियां। अगर कुछ सोशल चेंजेस भी हों, स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, अगर अर्बन एरियाज की तरफ जो है वो माइग्रेशन ज्यादा है तो वहां कंजम्पशन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। माइग्रेशन के अलावा लिटरेसी रेट बहुत मैटर करती है। अगर लिटरेसी रेट ज्यादा हो जाए तो कहते हैं कि लोगों में सेविंग के लिए अवेयरनेस पैदा होती है, अपने फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए अवेयरनेस पैदा होती है, तो वहाँ कंजम्पशन लेवल कम और सेविंग लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर जो है पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह तब्दील हो कि वहाँ ओल्ड पीपल और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं लेस देन 16 ईयर्स, अगर उनकी तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है तो वहाँ जो है कंजम्पशन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
यानी कि अगर मईशत की हैयत, मईशत की जो आबादी की जो कंपोजिशन है या आबादी की हैयत इस तरह बदलती है कि बच्चों और बूढ़ों का तनासुब ज्यादा हो जाए, तो वहां जो है वो कंजम्पशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है वो कंजम्पशन पर ज्यादा खर्च करते हैं। और इसी तरह जो है अगर किसी मुल्क में जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा बेहतर हो जाए, लोगों को जो है शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज के बारे में ना सिर्फ ज्यादा अवेयरनेस हो जाए बल्कि ये सिस्टम भी ज्यादा मुनस्सिम हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो सेविंग लेवल है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर मुल्क किसी पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो जाए या किसी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे कि कोई जंग या कोई टेररिज्म या खाना जंगी, ऐसी सूरत हाल में तो इस क्राइसिस के दौरान जो है वो कंजम्पशन लेवल बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है और सेविंग लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस क्राइसिस से बाहर आते हैं तो हालात जो है वो बेहतर हो जाते हैं, गोया कि उस वक्त बाहर आने के बाद कंजम्पशन लेवल इंक्रीज करेगा और सेविंग लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये थे वो फैक्टर्स जो कि हमारे कंजम्पशन और सेविंग लेवल को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ये दोनों जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर कोई फैक्टर कंजम्पशन लेवल को इंक्रीज करने का बायस बनता है तो ऑटोमेटिकली वही फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कि सेविंग लेवल जो है वो कम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।